लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन लिए थे और एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था, रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और इस टॉपिक के कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक के। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है and you have to find the value of k using this condition. Okay, so alpha and beta are the zero of this given polynomial. सबसे पहले रिलेशन क्या होगी, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग यूज करते हैं सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा plus beta is equal to minus b by a, so it is 5 because the value of a is 1. Okay, and second relation is alpha beta product of 0, alpha beta is equal to c by a, so it is k. Now you have to find the value of k using this identity. हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, we can use these two equation. First equation is alpha plus beta is equal to 5 and second equation is already given in the question. It is alpha minus beta is equal to 1. So for finding the value of alpha beta we can use these two equations. Adding these two equations, beta is removed and it is 2 alpha is equal to 6, then alpha is equal to 3. Now we are finding the value of beta. It is given that alpha plus beta is equal to 5 and now alpha is equal to 3 plus beta is equal to 5, so it gives beta is equal to 2. Okay, so alpha is equal to 3 and beta is equal to 2. Now alpha plus beta, अब हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। सो अल्फा और वी कैन राइट इट k is equal to alpha beta. So it is clear that k is equal to 2 multiply 3 is equal to 6. ये हमारी आंसर आ गई है, k की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और यही आंसर में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी रहती है ऐसे क्वेश्चनों में, तो इनको भी ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बनेंगे। बोर्ड में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप की है। You have to find the value of k, but in this question alpha plus beta, that means sum of 0 of this polynomial is minus 5 by 2 and product of 0 is equal to c by a, so it is k by 2. Clear? Now we are trying to find the value of alpha and beta. Simply you can solve this polynomial to find out the value of k. क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू k बाई 2. We are using this relation and squaring both sides, so it is alpha plus beta whole square is equal to 25 by 4, so it is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to 25 by 4. Okay,
it is given in the question that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 by 4, and we have to use this relation. Okay, alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 25 by 4. We can write 21 by 4 in this place, so it is 21 by 4 plus alpha beta is equal to 25 by 4. So value of alpha beta is equal to 25 by 4 minus 21 by 4, it is 1. Okay, now we are using second relation, product of 0 alpha beta is equal to k by 2. Okay, alpha beta is equal to k by 2, and the value of alpha beta is equal to 1, so it is 1 is equal to k by 2, then k is equal to 2. और भी बहुत से मेथड हो सकते हैं इसके सॉल्व करने के क्वेश्चन के। जैसे आप पहली क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं के कहाँ है, कांस्टेंट प्लेस में। स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं के की वैल्यू निकालने के लिए, ये बहुत, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द second quadratic polynomial whose 0 are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. And alpha beta, it is clear that alpha beta are the 0 of this given polynomial. Okay, so first we try to find the value of alpha beta. Okay, the polynomial is x square minus x minus 2. So it is clear that alpha plus beta is equal to 1, because the value of a is 1, coefficient of x square is 1 and coefficient of x is minus 1. So alpha plus beta is equal to minus b by a, so it is 1. And product alpha beta is equal to c by a. c is minus 2. Okay, so it is minus 2. यहाँ पे एक और मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए। सिंपली वी कैन फैक्टराइज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पी एक्स इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को भी यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नाउ वी हैव टू सर्च टू नंबर्स whose sum is -1 and whose product is -2। क्या हो सकते हैं दो नंबर whose product is -2 and sum is 1? आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे दो नंबर, प्रोडक्ट इज -2 एंड सम इज -1, इट इज -2 एंड +1। क्लियर? सम ऑफ these two number gives -1 and product of these two number gives -2। okay, so it is x square minus 2x plus x minus 2। x minus 2, 1 को कॉमन करेंगे x minus 2, so it is
x माइनस 2 एंड इट इज x प्लस 1। इन दोनों फैक्टर को यदि हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू हम लोग को x की मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। सो इट इज क्लियर दैट these two value represent alpha and beta. Alpha is equal to 2 and beta is equal to minus 1. Alpha is equal to 2 and beta is equal to minus 1. ये क्या है? ये आपके इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है, अल्फा बीटा। Now you have to find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. So first we find the zero of second polynomial. Okay, so zero of second polynomial, zero of required polynomial बोलना ठीक रहेगा, required polynomial is equal to 2 alpha plus 1. So it is value of alpha is 2, so it is 5. And second zero of this polynomial is 2 beta plus 1. It is equal to minus 2 plus 1. बीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ यूज की हुई है, so it is माइनस 5 और माइनस 1। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा बीटा नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि अल्फा बीटा तो हमारे गिवन पॉलिनोमियल की जीरो है, तो यू कैन राइट जीरो ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को बताया था इसकी एक रिलेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की सम कितनी होने वाली है यहाँ पे? 2 माइनस 1 0। ये होगी आपकी 5 माइनस 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट of 5 and minus 1 is minus 5. So it is x square minus 4x minus 5. x square minus 4x minus 5। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को हमेशा, अभी मेरे से भी कंफ्यूजन हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अल्फा बीटा की प्लेस में हम लोग 2 के सिंग वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अधिकतर बच्चों में होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है एंड जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 5 and minus 1. It is not 2 and minus 1. 2 and minus 1 are the zero of given polynomial. Okay? ये हम लोगों ने अभी 3 क्वेश्चन यहाँ आज डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इसी टाइप की क्वेश्चन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1st 2nd सेम है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5th and 6th भी सेम है। 3rd क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस की, अभी 4th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। The given polynomial in 4th question is px is equal to 3x square minus 4x plus 1। सबसे पहले हम लोग इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे और ये जीरो क्या होने वाले हैं? अल्फा एंड बीटा। फिर वही रेगुलर मेथड हम लोग यूज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है, इट इज वेरी कॉमन मेथड टू फाइंड आउट द जीरो और फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, 3x square. Now we have to find two numbers
whose sum is -4 and whose product should be 3. Can you find these two numbers whose sum should be -4 and whose product should be 3? हम लोग इसमें ले सकते हैं -3 and -1. Okay, so it is -3x minus x plus 1. Product of these two numbers is sum कितनी है? Sum of these two number is -4 and product is 3. नहीं, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है. -3x, okay, -3x minus x. Product sum of these two number is 4x, okay, and product is +3, okay, no problem at all. Now we can common 3x, so it is x minus 1, and here we can common -1, so it is x minus 1. Now it is 3x minus 1 and x minus 1. Okay, so our 0 are 1/3 and 1. So alpha is equal to 1/3 and beta is equal to 1. These alpha and beta are the 0 of given polynomial, and the 0 of the required polynomial is alpha square upon beta and beta square upon alpha. So 0 of required polynomial is alpha square upon beta. Okay, it is 1/9 and beta is equal to 1, so it is 1/9. Clear? And second 0 is beta square upon alpha. Value 1, so it is 1, and 1/3, so it is 3. Okay, now we have to find the required polynomial. It is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay, first we find the sum of 0 of required polynomial. It is alpha plus beta. Okay, alpha plus beta, 1/9 plus 3, it is 28/9. Okay, required polynomial is equal to, so it is x square minus 28/9x and प्रोडक्ट क्या होगी इसकी? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई 3, इट इज 1/3 प्लस 1/3. ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 प्लस 1/3. दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है. इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करनी है. फिर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आती है इस टाइप की क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आप लोग देख रहे हैं. हियर इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. हालांकि एनसीईआरटी बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हायर ऑर्डर के हैं, हम लोग को करना है क्योंकि कभी बोर्ड एग्जाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट we
find the relation between 0 and coefficient of polynomial of cubic polynomial. Okay, so it is clear that it is a cubic polynomial, so there are 3 zero of this polynomial and we represent these 3 zero alpha, beta and gamma. Clear? And relation between 0 and coefficient of polynomial is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and alpha beta gamma is equal to minus d by a. सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं. क्या होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? इट इज px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and these are relation between 0 and coefficient of a cubic polynomial. First relation is sum of 0 of cubic polynomial. It is alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. And second is product of sum of 0. इसको क्या बोलते हैं? Product of sum of 0. So it is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. And third relation is product of zeros of cubic polynomial, so it is alpha beta gamma is equal to minus d by a. In question number 5, you have to find the zero of this cubic polynomial. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करने हैं. इट इज क्लियर दैट दिस इज देयर आर 3 zero of this polynomial because it is a cubic polynomial. Clear that? And you have to apply this condition to find out the zero of this cubic polynomial, and given condition is 2 zero are equal and opposite in sign. Okay, so we can consider that first zero is alpha and second zero is, क्या होगी सेकंड जीरो? यूजिंग दिस गिवन कंडीशन वी कैन कंसीडर इट माइनस अल्फा एंड थर्ड इज गामा. ओके, सो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिख सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन दैट 2 zero are equal but opposite in sign. So beta is equal to alpha but opposite in sign. So we can write beta is equal to minus alpha. Now there are these three relations. इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी? -5, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो ये +5 हो जाएगी. नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा. इट इज अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5. ओके, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्लियरली गामा की वैल्यू हो जाएगी 5. ये हमारी एक जीरो आ गई है गामा की और ये है 5. नाउ वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड अदर 2 zeros. वी कैन यूज कोई भी रिलेशन आप इसमें यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं. अल्फा बीटा के प्लेस में फिर माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू 5 हमारे पास है एंड इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. एंड दिस पॉलिनोमियल डी ए बी सी डी, डी इज इक्वल टू 80, सो इट इज -80. ओके,
So it is minus alpha square multiply 5 is equal to minus 80. So alpha square is equal to 16 and alpha is equal to plus minus 4. अल्फा की वैल्यू से ही हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि टू जीरो आर इक्वल एंड अपोजिट साइन। So required zero of this cubic polynomial are plus 4, minus 4 and 5. Okay? क्लियर हुई बेटा अच्छे से? ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ये थोड़े से हायर ऑर्डर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमको एनसीईआरटी से ऊपर हायर ऑर्डर के क्वेश्चन करने होंगे यदि हमको बोर्ड में अच्छी रिजल्ट लाना है और कंपटीशन के लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर सेम। यहाँ भी आपको क्या करनी है? यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो एफ और जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। कंडीशन क्या है इन दिस क्वेश्चन? द कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो इज 12। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो इज 12। ओके, सो वी कैन कंसीडर दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन सी रिलेशन यूज करनी चाहिए? इस रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए and the value of b in this polynomial is 24, so it is minus 24. Okay, value of a is 1, so no problem at all, it is minus 24, and the value of product of 0 is 12, so we can write 12 in the place of alpha beta. So now it is 12 gamma is equal to minus 24, so gamma is equal to minus 2. क्लियर? अभी हम लोग को दो जीरो और फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? इन कंडीशन को हम लोग यूज करके फाइंड करेंगे दो जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले ये तो हमारी गामा की वैल्यू आ गई है, इस रिलेशन को आप यूज करेंगे, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड माइनस बी बाई ए वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 5, सो इट इज 5, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। क्लियर? यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। दो कंडीशन आपके पास में है, द सम ऑफ टू जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। दोनों सम की, दोनों जीरो की सम 12 है एंड प्रोडक्ट कितनी है आपकी? सॉरी, सम आपकी 7 है और प्रोडक्ट 12। तो आप इसको डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अदरवाइज आपको इन कंडीशनों को यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हियर इट इज क्लियर दैट जीरो अदर टू जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 4 and 3, because the sum of 4 and 3 is 7 and product of 4 and 3 is 12. So alpha is equal to 4, beta is equal to 3 and gamma is equal to minus 2. 4, 3, minus 2 इसकी आंसर होगी। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आपको फिर दो इक्वेशन बनानी होगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ, फिर इसको आप लोग अपने मन से करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12. So value of beta is equal to 12 upon alpha. इस वैल्यू को आप इस रिलेशन में पुट करेंगे, इट इज अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा और इज इक्वल टू 7. अल्फा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 7 अल्फा. इसको भी सॉल्व करके आप नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके अल्फा की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेपरेट चैप्टर है, जब हम लोग उसको करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतने ही रखते हैं. मैं बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कोशिश है मेरी आधे घंटे की सेशन ले रहा हूँ मैं. क्यों? जिससे आप लोग घर में बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर सके, इनको समझ सकें. आप आधे घंटे वीडियो देखिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर में करते रहिए, तो आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी घर में. ठीक है, ओके.